Assalamu alaikum students. This is Naghman Hameed. This is our fourth video regarding A-level paper 1 computer science topics, and today's video is about information representation, right? And we'll be discussing the past paper questions with context to the topics, right? So let's see what's there. I'm going to share my screen. All right. There are some questions that students they feel like they have to go through these questions and they have to find out the strategy how to deal with these types of questions, right? Information representation is the very first topic of the syllabus, and this topic is regarding the use of characters, numbers, alphabets, and all types of data that a computer can use. Okay? Yeah, this is a type of misconception that this is regarding only binary and decimal and hexadecimal numbers. No, it covers just first half of the chapter. The remaining half of the chapter is regarding how to convert the multimedia software, the multimedia objects like sound, audio, and images. ठीक है? तो इसके अलावा compression है इसमें कि हम फाइल को compress क्यों करते हैं, what are the compression methods, the types of compressions, ये भी हम इसमें साथ में करेंगे. ठीक है? तो this is not only about the binary and decimal numbers, it's about dealing with all types of data. ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन. Now let's start with this. Let me give you a very brief introduction about the information representation. Representation means how does computer represent the data? Now data has a wide range of types of information. Like one type of information contains the letters, capital letters and small letters. Then comes the digit format, 0 to 9 digits, special characters. ये तो सारा वो data हो गया ना जो हम लोग use करते हैं. Now computer uses a variety of data, such data consisting of characters, numbers, special characters, alphabets, etc., etc. Since this is a variety of data, so there should be a single system used to have concerned and equivalent code. Like we have a number 24, for example. This 24 is to be converted to binary. So once we learn the method, we can easily convert this decimal number to binary. ठीक है? Binary को decimal में convert कर सकते हैं, hexadecimal को binary में कर सकते हैं. But the crucial thing is, how can we convert alphabets to binary? A, B, C, X, Y, Z, and how to convert the special characters? Equal sign, colon, semicolon, hash sign. इस तरह के जो numbers हैं, जो special characters हैं, उनको हम कैसे convert करेंगे? What's the binary equivalent value for these numbers, for these special characters? It means there should be such a system that should standardize every type of data, right? It should convert any type of character, whether that is an alphabet, number, or special character, or control characters, or graphic characters. They all should be converted to a standard format. That coding system is called ASCII, right? ASCII is an abbreviation. It stands for American Standard Code for Information Interchange. We don't have to learn the ASCII values of every character, right? We don't have to. It's given in the table. There is an ASCII table that contains 256 different characters and their corresponding ASCII values, right? वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस तरह का भी डेटा हो. जो मैंने 3 तरह का डेटा आपको बताया या 5 तरह का बताया, I am repeating. Alphabets, all alphabets, capital and small, all digits from 0 to 9, all special characters present on the keyboard or even they are not on the keyboard. Control characters, जिसमें shift key, control key, alt key, caps lock, function key, backspace, ये सारा जो keyboard में होता है. And all graphic characters. Graphic character होते हैं जैसे scientific symbols होते हैं, alpha, beta, pi sign, sin, cosine, ये सारे जो आपके होते हैं, ये सारे graphic characters हैं.
स्माइली फेस, इमोजी वगैरह ये सारे होते हैं, दे हैव देयर इक्विवेलेंट एसवी कोड। ठीक है, ये तो आपका डेटा होता है। सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर कवर्स मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स। अब साउंड और इमेजेस ये भी तो बाइनरी में कन्वर्ट होने। ठीक है, तो हमारे जो साउंड है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये एनालॉग साउंड है, is being converted to digital form and then it reaches you. Again, it is converted from digital to analog sound so that you can understand what I am speaking. Because digital sound हमें समझ नहीं आती, वो तो बाइनरी में 0101, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो 0101 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम 0101 में हमें कोई सुनाएगा तो हमें समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट कैन नॉट बी हर्ड, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड बैक टू एनालॉग। तो एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन ये हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो हर तरह का डेटा, whether that is नंबर, अल्फाबेट हो, और या फिर हमारे पास मल्टीमीडिया डेटा हो लाइक इमेजेस, साउंड, सारे के सारे अल्टीमेटली बाइनरी में कन्वर्ट। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा एंड आल्सो द नेगेटिव, वो इन्हीं क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ऑलराइट, आई थिंक दिस इंट्रोडक्शन इज इनफ। लेट्स स्टार्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। This is 8-bit binary. 4 binary digits means 4 bits. They are equal to 1 hexadecimal digit. हम 4 के groups बना लेते हैं. Starting from right side, binary numbers are always read from right to left. So let's count 4 binary digits. 1, 2, 3, 4. अब इनको ऊपर प्लेस वैल्यूज अप्लाई करेंगे. 1, 2, 4, 8. ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको पता है कि वेटेज होती है, 2 की पावर होती है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। उनको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 0 मींस 1, 2 रेज़ टू पावर 1 मींस 2, 2 रेज़ टू पावर 2 मींस 4। सो दैट्स व्हाई वी यूज द प्लेस वैल्यूज 1, 2, 4, 8 बस। हेक्सा में ये 4 डिजिट्स होते हैं। ओके, 1, 2, 4, 8, तो 8 के नीचे 1 है, 1 मींस ऑन, 0 मींस ऑफ, so 8 will be switched on. तो first 4 bits का आंसर आएगा 8 in hexadecimal. Now let's consider the remaining 4 bits. 1, 2, 4, 8. अब 4 के नीचे 0 है, बाकी तीनों के नीचे 1 है. Let's add all these 3 place values. इसके ऊपर 8 है, 2 and 1. 11. 8 plus 2 plus 1, 11. 11 आगे आंसर हो गया. हेक्साडेसिमल में 11 को उसके इक्विवेलेंट अल्फाबेट से शो करते हैं. 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, एंड सो ऑन. लास्ट हमारा जो 15 होता है उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा 11 है, तो हम इसको B से रिप्रेजेंट करें. सो ओवरऑल इसका आंसर हमारा 8 था. ओवरऑल आंसर इज B8. ठीक है, ये B का आंसर है, ये 8 है, तो आपने वही ऑर्डर यूज करना है, B8. ठीक, there is no working for this question, so just answer is required, 1 mark. अगर कहीं working हो तो वो usually 2 marks का होता है. ये 1 mark है तो ये सिर्फ आपका आंसर रिक्वायर्ड है. अब वर्किंग इसी के ऊपर कर लें या सेपरेट आप ब्लैंक पेज के ऊपर कर लें, डजंट मैटर. बेहतर आप ब्लैंक पेज के ऊपर कर लें. आपके पेपर के अंदर एटलीस्ट 1 या 2 यूजुअली ब्लैंक पेजेस होते हैं, वो इसी काम के लिए होते हैं. आप रफ वर्क करने, एडिटिंग करनी है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग डेली नंबर इनटू बीसीडी फॉर्मेट. BCD stands for binary coded decimal. BCD is different from binary, although BC is represented in terms of zeros and ones, but it's not same as binary. उसके फीचर थोड़े डिफरेंट होते हैं. जैसे BCD is used for those numbers that don't have any mathematical value. Like BCD में इसको 97 नहीं पढ़ेंगे, 97 पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर होता है, आप अपने रोल नंबर को कभी नहीं बताते कि 14,311, राइट. आप बताते हैं 14311. क्यों नहीं ऐसे कहते? क्योंकि हमें वो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती, राइट. सिमिलरली आपसे अगर मैं फीस पूछूं, आप फीस को ऐसे बताएंगे, माई फीस दैट इज चार्ज्ड इज 44,700. उसको 44700 नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी मैथमेटिकल वैल्यू. तो बीसीडी उन नंबर्स के यूज होता है जिनकी मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं होती. तो इसलिए हम इनको सेपरेट पढ़ते हैं और इनको सेपरेट ही कन्वर्ट करेंगे. 9 will be converted to binary separately in 4 bits and 7 will be done separately. ठीक है,
अब 7 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है, 1 2 4 8। तो 7 आपके पहले 3 डिजिट्स ऑन रखते हैं, 1 2 4, तीनों प्लेस वैल्यूज को ऑन करेंगे ताकि 4 + 2 + 1 7 आ जाए और लास्ट 8 आपको। तो 1 BCD digit in decimal is converted to 4 bits in binary, 1 1 1 and 0। ये 7 का आंसर हो गया 4 बिट्स में, क्योंकि 3 बिट्स में आंसर आ गया ना, 111। आपने 4 बिट्स पूरे करने, एक 0 आप लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद 9 को कन्वर्ट करेंगे। 9 में कौन सी प्लेस वैल्यूज ऑन होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी 1 and 8। प्लेस वैल्यूज आर 1 2 4 8। 8th और फर्स्ट ये ऑन होगी तो 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 1 0 0 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 7 के आंसर और 9 के आंसर में आप चाहें तो थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, इट्स बेटर टू गिव गैप, लेकिन इवन मार्किंग स्कीम में भी गैप नहीं होता, तो इसमें आपका सही हो जाएगा। अगर आप इकट्ठा भी इनको 8 बिट्स लिख देंगे, 4 बिट्स फॉर 7 एंड 4 बिट्स फॉर 9 आंसर, तो दैट विल बी ओके। ठीक है जी। Using 2's complement, show how the following Delhi numbers could be stored in 8-bit register. Now, 2's complement. 2's complement is a method of representing binary number in positive or negative numbers. किसी भी साइन के साथ आपने करना। अब इसमें साइन आ गया 2's complement. 2's complement does not always deal with negative numbers. This is a misconception. हम कहते हैं जब 2's complement लिखा है तो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। नो, ये देखिए पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव है। तो 2's complement का मतलब है साइन सेंसिटिव। आपका जो ये अगर ये 8 बिट लिखा हुआ है ना, 8 बिट, तो बिट नंबर 8 विल बी योर साइन बिट, ये वाली और ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साइन बिट है। ठीक है, और 2's complement का मतलब है ये साइन बिट भी है और मैग्नीट्यूड बिट भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी वेटेज भी। ठीक है, अब जो प्लेस वैल्यूज अभी हम यूज कर रहे थे ना मेथड, अब इसकी प्लेस वैल्यूज क्या होगी, 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड पॉजिटिव 128। ठीक है, और ये देखिए ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव 23। इसकी जो प्लेस वैल्यूज होगी 1 2 4 8 16 32 64 128, और 128 के साथ नेगेटिव 128 आएगा। ठीक है, इसलिए कि देखिए डेसिमल में तो आप नेगेटिव साइन ऐसे लिखते हैं, बाइनरी में आप नेगेटिव साइन नहीं लिख सकते, आपको उसके लिए भी बिट्स यूज करनी है। तो 1 बिट 1 इज यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड बिट 0 इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप, अच्छा 114 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 114 का आंसर अगर आपका 6 बिट्स में आता है, फॉर एग्जांपल 6 बिट्स में आता है, तो बाकी दो आप जीरोस लिखेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ अ पॉजिटिव नंबर इज शोन इन 2's complement फॉर्म, कि आप उसके जीरोस पूरे कर दें, बिट्स पूरे कर दें बस, बाकी इसके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेगेटिव में आपका जो लास्ट बिट है, ये बिट नंबर 8, दैट विल बी, दैट मस्ट बी 1, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, नेगेटिव 93 का, यू नो द मेथड हाउ टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी, वही वाला मेथड 1 2 4 8 1 2 4 8 16 करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक आप ये कर सकते हैं कि पहले इसको पॉजिटिव एज्यूम करें। आई एज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो द मेथड हाउ टू कन्वर्ट डेली टू बाइनरी, तो आप ये करें, ये नेगेटिव है ना, आप इसको पहले पॉजिटिव एज्यूम करें। 93 का पहले आंसर लें बाइनरी, 8 बिट्स पूरे करें, देन यू अप्लाई 2's complement method. And you know 2's complement method is applied in 2 steps. First of all, 1's complement and then 2's complement. Okay? 1's complement means we invert all the bits for this number. 93 का जो भी आंसर है उन सारी बिट्स को इन्वर्ट कर लेंगे, all 8 bits will be inverted. Inversion means all ones become 0 and all zeros become 1. ठीक है, उसके बाद आपने इसमें 1 ऐड करना है, जो आपकी ये वाली राइट मोस्ट बिट, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसमें 1 ऐड करेंगे। आपको पता है ये फर्स्ट बिट आपकी राइट साइड से ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और ये लेफ्ट मोस्ट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। व्हाई डू वी कॉल इट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट? बिकॉज इट्स प्लेस वैल्यू इज द लीस्ट वन, 1 1 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 सबसे बड़ी वेटेज होती है, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, जैसे हम डेसिमल में करते हैं ना, यूनिट 10 100 1000, तो राइट मोस्ट साइड पे यूनिट होता है, वो सबसे कम वैल्यू होती है, और 1000 10,000
100,000 उसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है। तो आप उसके बाद इसको करेंगे। Alternatively, if you don't want to use that method that consider it a positive number and then one's complement, two's complement, you can use a direct method. आप यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 8 16 30, ये नेगेटिव 128 अपनी। अब आपने नेगेटिव 93 लिखा, तो नेगेटिव 128 में से आप क्या माइनस करेंगे? 93 आंसर आ जाए। तो आप ये करेंगे नेगेटिव 128 में से 93 माइनस करेंगे, कितने रह गए? 28 + 7 35। इसको तो आप ऑन करेंगे नेगेटिव 128, बाकी अब 37 यहाँ से पूरे करें, यानी इस तरह से 01 को कॉम्बिनेशन लिखेंगे क्योंकि जो प्लेस वैल्यूज हैं उसका रिजल्ट 37 है। 1 2 4 8 16 32, ये देखिए जी 35 ज़्यादा 35 आ जाए, ये 32 है। 32 को आप ऑन कर लें, बाकी 3 रह गए। 3 1 और 2 से पूरा, इन दोनों को ऑन कर लें, 1 1 एंड 1 एंड 1, बाकी को जीरोस कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखते हैं तो भी। Let's go to this question. Using 2's complement, show how the following Delhi numbers could be. इसको भी इस तरह से कर लेंगे 8 bits में। इसको कर लेंगे 124। Obviously it will not use all 8 bits, वो यहाँ तक ही आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ तक ये तक आ जाएगा, बाकी आप 0 कर दें। नेगेटिव 77 उसी तरह आप 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, जो 2's complement मेथड अभी हमने किया। ठीक है, सेकंड पार्ट, कन्वर्ट द टू नंबर्स इन पार्ट A1 इनटू हेक्साडेसिमल। ये जो दो नंबर्स हैं, अब कौन से नंबर्स? ये देखिए 124 और नेगेटिव 77, इनको हेक्सा में करना है। नाउ कन्वर्टिंग अ डेमी नंबर टू हेक्सा, इट रिक्वायर्स यूजिंग अ मेथड दैट इज रिपीटेड डिवीजन मेथड। आपको याद होगा कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी आप रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, राइट? 2 से डिवाइड करेंगे रिपीटेडली 124 को until you cannot divide it further, उसके जितने रिमाइंडर और लास्ट क्वेश्चन होगा उनको आप लिख लेंगे, वो आपका आंसर आ जाता है। On the other hand, if you want to convert it to hexadecimal, you will divide it repeatedly by 16 because hexadecimal's base is 16, उसे डिवाइड करेंगे जो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? कुछ लोगों ने ये मेथड नहीं किया होता, कुछ लोग प्लेस वैल्यू मेथड करते हैं। ठीक है, तो आप प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें आपके जो ये थोड़ा सा इसमें वो एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि आप स्मार्ट अप्रोच यूज करें। Why do we convert this decimal number to hexadecimal? Why don't we convert this binary number to hexadecimal? Because this binary number is exactly equal to this denary number. इसका इक्विवेलेंट भी यहाँ पे denary आ गया, यहाँ पे binary आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव को तो वैसे भी कन्वर्ट करना मुश्किल है हेक्सा में, आपने उसकी कन्वर्जन नहीं की हुई, तो आपने आपने क्या करना है इसमें, आपने इसको नहीं देखना। ऑल्दो ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 124 का इक्विवेलेंट हेक्सा में क्या होगा, तो 124 की जगह ये बाइनरी देख लें, इस बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना इजी है। ठीक है, 124 का जो यहाँ देखिए 4 बिट्स 1 2 3 4, इसको अलग से हेक्सा में कन्वर्ट कर लें, इन 4 बिट्स को अलग से हेक्सा में कन्वर्ट कर लें, दो आपके हेक्साडेसिमल के डिजिट्स आ गए। सिमिलरली नेगेटिव 77 के जो भी बाइनरी है, यहाँ पे तो 1 आएगा नेगेटिव की वजह से, इसके भी ये 4 बिट्स अलग और ये वाली 4 बिट्स अलग हो जाएगी। और कैसे करना है ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था एग्जैक्टली होगा ये, हमने इस बाइनरी को हेक्सा में किया, 4 बिट्स को अलग किया, इन 4 बिट्स को अलग किया, उसी तरह आप इनको करिए। तो यहाँ से बाइनरी से करना इजी है एज कम्पेयर टू डेसिमल। एट दिस स्टेज डेसिमल एंड डेनरी यू नो दे आर 100% सेम, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डेसिमल इज द ओल्डर नेम गिवन टू दिस नंबर सिस्टम। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ तो लैटिन वर्ड डेसिमल होता था, तो डेसी मीन्स 10, तो चूंकि 10 फिंगर्स होती थी तो लोगों ने इसको, जो हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम है, उसको डेसी कहना शुरू कर दिया, बिकॉज 10 फिंगर्स पे हम काउंट करते थे ना, ये 10 टोज थे, तो उससे वो डेसिमल शुरू हो गया। लेटली इट वाज चेंज्ड टू डेनरी, तो अब इंग्लिश में हम उसको ज़्यादा डेनरी बोलते हैं। एनीवे एक ही चीज़ है, जैसे भी आ सकता है। राइट द नंबर 359 इन बीसीडी फॉर्म, मैंने इसको 359 पढ़ा है क्योंकि ये बीसीडी है, 359 नहीं पढ़ा। अगर बाइनरी हो तो इस बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 359। अब 9 को सेपरेट करेंगे, 5 को सेपरेट और 3 को सेपरेट, एंड 4 बिट्स विल बी यूज्ड इन बाइनरी फॉर ईच ऑफ दीज डेनरी नंबर्स। 9 के 4 बिट्स होंगे 1 0 0 1,
ठीक है, जैसे 9 वैल्यू बने 5 1 0 1 0 और 1 2 4 8 ऐसे, इसी तरह 3 1 1 0 0, राइट। डिस्क्राइब अ यूज ऑफ बीसीडी नंबर रिप्रेजेंटेशन। बीसीडी नंबर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है? बारकोड नंबर्स की कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती, हमारे रोल नंबर्स की, हमारे अकाउंट नंबर्स, हमारे टिकट नंबर्स, फ्लाइट नंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सारे यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? हमारा जो डिस्प्ले होता है कैलकुलेटर्स पे या काउंटर्स के ऊपर, वहाँ पे जो हमारे डिजिट्स नजर आते हैं ना, डेसिमल डिजिट्स जो डिजिटल से होते हैं, वो भी बीसीडी है, बिकॉज वो कैलकुलेट नहीं होते, वो हमारा नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो कैलकुलेटर के ऊपर जो डिजिट्स हैं वो भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, कोई एक यूज, कोई एक एप्लीकेशन आपने बता दी इसकी। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेनरी इंटीजर इनटू 8 बिट बाइनरी। जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट है ना, 55 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 और ये। Let's consider the place value that is immediately less than 55. 64 तो बड़ा हो जाता है, 32 is less than 55, ठीक है, तो 32 के नीचे आप 1 लिख लेंगे, 32 ऑन कर लें। So out of 55, 32 have been used. बाकी कितना रह गया? 55 में से 32 माइनस कर देंगे, 23 रह गया। ठीक है, अब 23 आपने कैसे पूरा करना है? 1 2 4 8 16, 16 को भी ऑन कर लें, 23 में 16 यूज हो गया, बाकी 7 रह गया। ये फर्स्ट थ्री हमारी बिट्स 1 हो जाएंगे, 1 2 4 ये मिलकर 7 बनता है। तो इन तीनों को ऑन कर ले, 0 1 1, ठीक है, बाकी आप जीरो लगा दें जो आपका यूज नहीं हो रहा। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी कोडेड डेसिमल इनटू डेनरी। अभी देखिए, बीसीडी बाइनरी है, इसको आपने डेनरी में करना है। तो बीसीडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 4, वी जस्ट लर्न 1 2 3 4, राइट साइड से एक ये हो गया, 1 2 3 4, इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यूज करें, 1 2 4 8, 1 2 दोनों ऑन है, 3 हो गया, इसका आंसर 3 आ गया, 1 2 4 8, 8 के नीचे 1 है तो इट इज ऑन, तो 8 को कंसिडर कर लेंगे, 8 3, ठीक है, 83 नहीं पड़ेगी, 8 3 हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेली इंटीजर टू 8 बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव उसी तरह से या तो उसको पॉजिटिव रिज्यूम करें, फिर 8 बिट्स कन्वर्ट करें, बाइनरी में 8 बिट्स पूरे करें, और इसके बाद आप इसको ones complement, invert the bits and then add 1 to the ones complement value, it will give you 2's complement value। उससे कर लें। दूसरा तरीका मैंने अभी हमने जो डिस्कस किया है, 1 2 4 8 16 32 64 128, दिस इज नेगेटिव 128। तो नेगेटिव 128 में से 2 माइनस कर दें, 26 बन गया। यहाँ आपने 26 पूरे करने हैं, ऐसे 0 1 0 1 का आपने कॉम्बिनेशन लिखना है कि जिसका रिजल्ट 26 हो। तो प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 1 2 4 8 16 32, 32 ज़्यादा है, 26 में 16 आ जाएगा, बाकी 10 रह गए, 8 + 2, इनको ऑन कर लेंगे, बाकी ऑफ कर लेंगे, इसको भी ऑन कर लेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेनरी। फिर हेक्साडेसिमल को डेनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज होगा, जस्ट 1 मार्क, वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट्स इसमें ये करते हैं कि हेक्सा से डेनरी में कन्वर्ट करने के लिए वो एक्सपेंशन मेथड यूज होता है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी हेक्सा की बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्सा की बेस पे 16, 16 इंटू ई शोज विच नंबर, हेक्साडेसिमल में ई 14 शो करता है। आपको पता है जो डबल फिगर नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल में, उनको आप लेटर से शो करते हैं, जैसे 10 के लिए ए यूज करते हैं, 11 के लिए बी, सी के लिए 12 के लिए सी एंड सो ऑन। अभी हमने ये बात की। आप 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 के ऊपर आप उसकी पावर यूज करेंगे, 0 1, then we will add the number, simplify, etc etc। कुछ लोगों को ये मेथड पता होता है, एक्सपेंशन मेथड। कुछ करते हैं कि हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद डेनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट कन्वर्शन करते हैं। बेशक ये करें, एग्जामिनर ने ये तो नहीं कहा कि आप इसकी वर्किंग शो करें, उनको आंसर चाहिए, तो आप पहले इसको बेशक बाइनरी में कन्वर्ट करें। ई 14 है तो 14 के लिए 4 डिजिट्स बाइनरी, 4 के लिए 4 डिजिट्स बाइनरी,
ठीक है, विच इज 0010 और ई का जो आता है वो करके फिर उनको आप डेनरी में कन्वर्ट करें, अलग अलग डेनरी में कन्वर्ट करें, आपको वही आंसर आ जाएगा। चाहे डायरेक्ट कर ले एक्सपेंशन मेथड से या इनडायरेक्ट करें, पहले बाइनरी में फिर डेनरी में करें, राइट। तो अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको बस स्किप करते जाते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको फिर हम लेते हैं, ठीक है। इसको डेनरी में करने हैं, सिंपली पावर इसकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 जिनके नीचे 1 लिखा हो प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लें, यहाँ पे लिखना आंसर। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेनरी नंबर इनटू बीसीडी अगेन। नाउ 2 के लिए 4 बिट्स बाइनरी अलग लिखेंगे, 8 के लिए 4 बिट्स अलग लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर इनटू डेनरी। अब ये 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों का है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, राइट। 8 बिट्स है ना, टोटल हमारे 8 बिट्स चले आ रही है, यहाँ भी 8 बिट्स थे, ये भी 8 बिट्स है। तो बिट नंबर 8 इज साइन बिट, 1 shows a negative number। ये देखिए यहाँ पे 0 था बिट नंबर 1, तो ये पॉजिटिव नंबर था, ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब आपने इसको वापस कन्वर्ट करना है डेसिमल, पहले हम डेसिमल से बाइनरी में किया था नेगेटिव नंबर को, अब नेगेटिव बाइनरी को नेगेटिव डेसिमल में करेंगे। उसी तरह प्लेस वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 नेगेटिव 128, ठीक है। अब बाकी को ऐड कर लें, नेगेटिव 128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, जो भी आपका आंसर है। अगेन नो वर्किंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपको 2 लाइन इसलिए दिए हैं कि आपने ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर उनको प्लस करना है, प्लस के लिए यहाँ पे आपको जगह चाहिए, इसलिए आपको 2 लाइन, अदरवाइज वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। Alright, D part, convert the following denary number into hexadecimal. Show your work. Now show your work. 1 mark for working and 1 mark for the correct answer. जी, डेनरी को हेक्सा में करने के लिए वही रिपीटेड डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था, इसको आप डिवाइड करेंगे 16 से रिपीटेडली, 16 1s are 16, ये 19 है, 3 इधर आ गया 38, 16 2s are 32, बाकी 6 बचा, ठीक है। तो बस ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, जो भी है 16 1 है 16 और 3 है 16 2 है 1 2 12 हो गया, ठीक है। तो 12 को आप हेक्साडेसिमल में किससे शो करते हैं, ए को 10 से करते हैं, बी को 11 से करते हैं, सी को 12 से करते हैं, तो सी लिखेंगे, राइट। तो ये आपका C6 आंसर आता है। वर्किंग आप यहाँ पे जो आपने डिवीजन किया है वो यहाँ पे शो कर दें, 16 से जो रिपीटेडली डिवाइड किया वो आप शो कर दें, ठीक है। जी अनदर क्वेश्चन सी पार्ट नाउ, आई थिंक ये अच्छा ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं इसलिए उसको क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं है, पार्ट्स का भी सीक्वेंस नहीं है, बट ये रैंडम क्वेश्चंस है। Computer scientists often write binary representation hexadecimal. Write hexadecimal representation for the following instructions. Quite easy. 2 marks हैं, 1 मार्क इसका, 1 इसका। ये देखिए 4 binary digits they make 1 hexadecimal digit. तो इनकी प्लेस वैल्यूज 1 2 4 8 यहाँ तक करेंगे, ये नहीं करेंगे साथ, ये अलग करेंगे, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स समटाइम कंफ्यूज होते हैं कि हमने वो क्या करते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे किया, इसको भी ऐसे करिए। नो, हेक्सा में करना है तो आप सिर्फ 4 बिट्स को कंसीडर करेंगे एट ए टाइम। 1 2 4 8, 8 ऑन है, 4 ऑन है, 2 ऑन है, इनको ऐड कर लें, 8 प्लस 4 प्लस 2 14, इसका आंसर 14 आता है। 14 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, किस लेटर से लिखते हैं, 15 को एफ से लिखते हैं, 14 को ई से लिखेंगे, इसका आंसर ई आ गया, इसके नीचे आप ई लिख लें। अब इसको अलग से कर लें, 1 2 4 8, 4 ऑन है, 1 ऑन है, 4 प्लस 1 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह इन 4 को कर लें, इन 4 को कर लें, ठीक है। A second instruction has been written in hexadecimal as 16 4D। अब ये hexadecimal है, write assembly language for this instruction with the operand indent। जी, अब इसको कैसे करेंगे, असेंबली लैंग्वेज उसने अभी अचानक यूज किया, इसका सिनेरियो नहीं है, दिस इज पार्ट सी, सो पार्ट ए एंड बी मस्ट बी फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। वो जब तक सिनेरियो आपके पास उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू आर एडवाइज टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर्स
एंड देन गो टू पार्ट ए एंड बी। ये मुझे जिन स्टूडेंट्स ने भिजवाया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्चुअली दे हैव ओमिटेड पार्ट ए एंड बी जो इससे पहले था, वो यहाँ पे नहीं है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करें। असेंबली लैंग्वेज फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। अब ये देखिए, ये असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑपकोड, या आप रिकॉल करेंगे आपको याद आ जाएगा, ये होता है ऑपकोड। दूसरा होता है ऑपरेंड, राइट। वन इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ऑपकोड होता है ऑपरेशन कोड, जैसे आपने पढ़ा है LDD, LDI, LDX, STO, ये सारे ऑपकोड्स। तो ये 16 है, ये ऑपकोड शो कर रहा है, ये ऑपरेंड शो कर रहा है 4D, राइट। ऑपरेंड इज टू बी रिटन इन डेनरी, इसको डेनरी में करना ऑपरेंड, तो हेक्सा को आपने डेनरी में करना है। उसी तरह एक्सपेंशन मेथड जैसे हमने पहले किया था, आपको याद है ई वाला भी एक आया था, हमने किया था ये वाला, जैसे ये डेनरी में करते थे। एक्सपेंशन मेथड मैंने कहा था 16 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, उनको ऐड करेंगे और 16 की पावर असाइन करेंगे, 0 से 0 1 2 ऐसे। सिमिलरली हम इसको कर लेंगे, ये आप डेनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। डेसिमल या डेनरी में कर देंगे उसी मेथड से, एक्सपेंशन मेथड मल्टीप्लिकेशन बाय 16। अब ये क्या है, ये भी हेक्साडेसिमल है 16, राइट। असेंबली लैंग्वेज फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। अब आपको जो पार्ट ए और बी मिसिंग है, पार्ट ए में आपको ये बताया होगा 16, उसमें जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबली लैंग्वेज की, LDD, LDI, LDX वगैरह सारी, वो सारी बाइनरी में लिखी हुई है, ठीक है। तो 16 हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 4 बिट्स फॉर 6 एंड 4 बिट्स फॉर 1, 8 बिट्स होंगे। वो जो बाइनरी में कन्वर्जन यहाँ पे आएगी बाइनरी नंबर, वो आप चेक करेंगे कि किस इंस्ट्रक्शन के साथ मैच करते हैं। अगर LDX की वही बाइनरी डिजिट्स है जो आपका 16 का आंसर है, तो आप लिखेंगे LDX, ठीक है। और आगे इसको डेनरी में लिखेंगे, 4D को डेनरी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अगर STO कमांड के साथ मैच करता है इसका बाइनरी, तो फिर आप STO लिखेंगे और 4D का डेसिमल लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप दोनों, ये 2 मार्क्स है, इसमें भी कन्वर्जन है, राइट। अनदर क्वेश्चन सी पार्ट अगेन, अब इसके भी दो मिसिंग है, बट लेट्स सी। यूजिंग 8 बिट ऑपरेंड, अब ये फिर ऑपरेंड आ गया। ऑपरेंड सेकंड पार्ट होता है, ऑपकोड ऑपरेंड। ये ऑपकोड है, ये 8 बिट्स ऑपरेंड। State the maximum number of memory locations in memory that can be directly addressed. ऑपरेंड क्या होता है आपका, या तो एड्रेस होता है या डेटा होता है। ऑपकोड आपकी प्योरली इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे LDD, STO, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपका एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है डायरेक्ट। अब यहाँ पूछने का है कि ये एड्रेस है और हाउ मेनी लोकेशंस इन memory this operand can show, मैक्सिमम नंबर। अब ये क्या शो कर सकता है जी, ये डी पार्ट है अगला। अब ये चूंकि सी पार्ट है ना, तो आपके बाकी उसमें शो नहीं हुए ए बी, बट ये 8 बिट से आप शो कर सकते हैं कि 8 बिट ऑपरेंड है, तो वो कितनी मेमोरी लोकेशन डेनरी में शो कर सकता है अगर 8 बिट से। अब देखिए अगर ये सारे 1 होते हैं, 8 बिट का मतलब है ना 8 बिट में मैक्सिमम नंबर, तो 8 बिट्स हमारी सारी 1 हो जाए, तो 1 2 4 8 16 32। अब इसमें साइन नहीं आपने देखना कि ये नेगेटिव 128, अब ये नहीं करेंगे। अब ये सारे 128 64 32 16 सबको ऐड करेंगे, इट मेक्स 255, ठीक है ना। 1 2 4 ये सारा 255 बनता है। एंड सिंस इट स्टार्ट्स विद 0, तो 0 एंड 0 से लेके 255 तक रेंज बनती है। इन टोटल देयर आर 256 नंबर्स, so it can show 256 or it can use 256 locations at maximum। इसका स्टेट फॉरवर्ड, ये डी पार्ट है कि often uses the scientists often write binary representation in hexadecimal, इसको हेक्साडेसिमल में लिखिए बाइनरी को, ये बाइनरी है। उसी तरह 4 बिट्स पिक करेंगे, 8 नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाले आपके 4 बिट्स एंड 4 बिट्स, इसी तरह ये 4 और ये 4 बिट्स। सेकंड इंस्ट्रक्शन हैज बीन रिटन इन हेक्साडेसिमल एड्रेस। अब ये वही चीज़ है जो पहले आई थी, आई थिंक ये उसी के डिफरेंट वेरिएंट्स। 5 हेक्साडेसिमल में इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मैच करेंगे आपके इंस्ट्रक्शंस के आगे। ये तो डी पार्ट है ना, सी और डी पार्ट, इससे पहले जो ए और बी है उसमें आपके
इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी और पोर्ट यानी LDD, LDI, LDX वगैरह, और उसके सामने उनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट उनमें से किस इंस्ट्रक्शन से मैच करता है, उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लिखना है। ठीक, इसको आपने डेनडी में कन्वर्ट करना है, और मैं जैसे पहले किया था एग्जैक्टली इसी तरह का, जैसे ये वाला पार्ट किया एग्जैक्टली राइट। चलिए चलिए जी, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम second topic, networking, communication and internet technologies. Devices connected to internet have IP addresses, right? 3 IPv4 addresses are given. ये देखिए जी, 1, 2 and 3 तीन addresses हैं. We have to explain and we have to see whether these addresses are valid or not. पहले तो ये mention करना है और उसके बाद हमें जस्टिफाई करना है कि ये वैलिड है तो क्यों है, इनवैलिड है तो क्यों है, राइट. एड्रेस 1 3a.21.2h.1 dot notation, you know, and this has been mentioned that these are IPv4 addresses, not IPv6. v6 में आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स भी आते हैं, इसमें सिर्फ डेसिमल और डेनरी नंबर्स आएंगे. So in IPv4, A, B, C and these letters are not allowed. उसमें तो आपका एक नंबर मैक्सिमम 255 नंबर होता है, ठीक है ना, 4 नंबर्स होते हैं, तो ये तो ठीक है, 3 डॉट्स है, इसमें 4 नंबर्स, दैट्स फाइन, बट दिस इज इनवैलिड बिकॉज इन IPv4 these letters, hexadecimal digits like A, B, C, these are not allowed. इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे. सेकंड इज, इसमें अब ये नंबर नहीं है, सेकंड में हेक्साडेसिमल है, बट there is 299.53.2. It seems to be okay, but isn't 299 out of range? Because maximum number that can be represented in IPv4 is 255. उससे बड़ा नंबर अलाउड नहीं है, so this 299 is out of range, so it makes it invalid. 192.2.1, there is nothing wrong with it. 4 numbers हैं, इनमें कोई अल्फाबेट भी नहीं है और 255 से एक्सीड भी नहीं कर रहा कोई नंबर, सो दिस इज अ वेरी मच वैलिड नंबर. ठीक है, इसके आप ये रीजंस बता दीजिए कि ये इसलिए वैलिड है कि ये रेंज आउट ऑफ रेंज नहीं है, इसमें हेक्साडेसिमल नहीं है और इसमें 3 डॉट्स. नाउ दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. A website can be accessed using either the uniform resource locator or IP address. Describe how URL is converted into its matching IP address. There are protocols involved. आप इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, राइट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे. डोंट राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ because it becomes difficult for the examiner to find out the points out of the paragraph. अगर आप इसको स्ट्रेट अवे बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो उनको सामने ही आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट. सो दिस इज इन योर बेनिफिट. URL actually makes use of certain protocols. First of all, HTTP ये यूज होता है, आपकी वेबसाइट को लेके जाता है, और आगे DNS प्रोटोकॉल इज यूज, डोमेन नेम सिस्टम. वो चेक करता है कि इज देयर एनी वेबसाइट विद दिस नेम अवेलेबल, ठीक है, वो उसका रूट सर्वर चेक करता है, वो बताएगा. उसके बाद आपके दूसरे IP एड्रेसेस TCP IP एक्चुअली दे विल बी यूज्ड टू टेक योर रिक्वेस्ट टू द कंसर्न सर्वर. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस काफी लेंथी है, आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि वो IP एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेगा. HTTP यूज होगा, DNS यूज होगा, राइट, और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस पे. You know, every website has its IP address in the background. All right. This is a simple question. People use the internet to stream media. Bit streaming आपने पढ़ा. Bit streaming is of 2 types. One is online bit streaming, जिसको run time भी कहते हैं, and the other is on demand. Like YouTube से हम जो चेक करते हैं, YouTube में videos already saved, right? तो on demand है, वीडियो सेव्ड है, वहां से जब रिक्वेस्ट करते हैं बिट स्ट्रीमिंग की तो वो ऑन डिमांड है. और एक होती है रन टाइम, जो लाइव आपकी चल रही है, जैसे टेलीविजन ट्रांसमिशन है, जैसे फेसबुक पे कुछ लाइव चल रहा है, उसको हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते,
ठीक है, वो रिकॉर्डेड नहीं है। बिट स्ट्रीमिंग इज यूज्ड व्हेन वाचिंग अ लाइव स्ट्रीम। तो ऑनलाइन होगी ऑनलाइन बिट स्ट्रीमिंग या रन टाइम बिट स्ट्रीमिंग। द अदर इज ऑन डिमांड, इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, जो हो चुका है वो ऑन डिमांड है। ये भी आपके बाइनरी के साथ रिलेटेड है, बाइनरी डेसिमल के साथ है। और bitmap image makes use of pixels. You know that the other type of image is vector graphic. तो ये bitwise, तो bitmap है। Draw one line from each box to the left, the correct box on the right. uh, Identify the minimum number of bits needed to store each maximum number of colors. ये थोड़ा सा unusual question. Usually we are given the number of bits that show the quality of an image. Maximum number of colors, आपने कलर्स को बिट्स में कन्वर्ट करना है। 68 को बिट्स में कन्वर्ट करें बाइनरी में, 1 2 4 8 16 32 64 64 तक जाएगा। 64 को ऑन कर ले, बाकी ये 68 है ना, तो 64 हैव बीन यूज्ड। देन हाउ मेनी रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4। तो 1 2 4 4 को ऑन कर लेंगे, 64 को ऑन कर लेंगे। हाउ मेनी बिट्स, इफ 7 बिट्स हैव बीन यूज्ड तो आप 7 के साथ मैच करें। 256 255 तक 8 बिट्स होती हैं। 255 से एक्सीड करेगा तो एक बिट और यूज होगी, इट मींस 9 बिट्स। आप इसको करके देखें, तो इसको 9 के साथ करें। इट अपीयर्स टू बी अ सिंपल क्वेश्चन बट एक्चुअली इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग। तो ये 3 मार्क्स का है, लेकिन आपको लाइन जब मैच करनी है तो उसके लिए इनको कन्वर्ट करना है। तो मार्क्स कम है लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको आपने जल्दी कर लेना। जिसको बाइनरी कन्वर्जन ईजी है तो वो जल्दी इसको कर लेगा। ठीक है जी, बाकी ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो भी हम कर रहे हैं। A digital camera takes a bitmap image. The image is 2000 pixels wide by 1000 pixels. These are showing number of pixels, right? With a color depth of 24 bits. This is the quality of image, 24 bits. How to calculate the estimated size of image? We'll multiply this dimension with this 2000 into 1000 into 24. नंबर ऑफ पिक्सल, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनटू 24 बिट्स। ये आपका आंसर बिट्स में आ जाएगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आंसर इन मेगाबाइट, MB, इट्स नॉट मीबी बाइट, इट्स मेगाबाइट। सो बिट्स को पहले आप बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट, 8। सो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका बाइट्स में आ गया। बाइट्स को किलो बाइट में कन्वर्ट करेंगे। So when we convert a smaller unit to bigger unit, we divide by the value. There are 1000 bytes in 1 kilobyte. So 1000 से divide करेंगे means 2000 into 1000 divided by 8 into 1000 and then again in megabyte, again 1000. Right? So simplify as much as you can. Otherwise, leave the equation as such and you'll get the full marks. Okay? ये आपको मिल जाए, जितना कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें। अदरवाइज आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली आपका वही इक्वेशन आपकी कंसीडर हो जाएगी। A second image is taken the time in black, this time in black and white. It has some number of pixels, but the file size is smaller. Yes, because just black and white, 2 colors, right? And they require just 1 bit. That's why file size is smaller, right? If there were more colors, the answer would have been in smaller file size. Right? Characters, their corresponding ASCII codes, small a का 97। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, हमेशा चार्ट आपको दिया होगा। Give 8-bit binary value for ASCII character B 98 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी टिपिकल आपके क्वेश्चंस उसी तरह से जैसे पहले ये देखिए, ये काफी क्रूशियल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है। इसमें भी आपको इनको कन्वर्ट करना है डैंडी में, फिर देखिए किसके साथ मैच करता है। इसको भी, ये BCD है तो अलग अलग हो जाएगा। 1 2 4 8 ये 9 है और 4 4 9, इट्स नॉट 49, इसको 49 पड़ेगा। देखिए 49 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आप इसके साथ मैच करें। सिमिलरली
जो भी इनके corresponding gallery number उनके साथ मैच करें, right? So I hope this video will definitely benefit you, and this will prove to be practice session, a good practice session for your tomorrow's paper. Best of luck to all of you. Okay, see you then. Allah Hafiz from Naghman Hameed.